So let me introduce first of all myself. So my name is Dushan Dogra, and I have a total experience of 10 plus years in web development, app development. So and currently we are going to start a web development or app development uh, webinar here. So I will give you an introductions on how development works. Okay. So before starting, let me share my screen. It is enabled or not? Okay, it is available. So my screen is visible to everyone. The, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? PPT web development. Yes, Dushyant, we can see your screen. Actually, like what happened, like we have muted all the participants so that like there is no Okay, okay, sure. sound disturbance. Okay, so you can just continue on that. Okay, sure. Okay, thank you so much. Okay, ठीक है. Web development. So basically, what is web development or app development? इसमें होता क्या है? ठीक है. So we have classified the development in very categories. So first of all, what are the definition, introduction about development, introduction, and how development is divided. It is like front end or back end development, full stack developer. What who are full stack developer? What are its meanings? App developments. So and the last is what developer does in real life. In companies, what are developer doing? So everything and last tool used. Which are the tool used in the development? Various tools we use for development of websites, software, app development. So we will discuss at last and then we will go to conclusion. Okay. So first, before starting, we should know what is web development. So what is web development? Web development is basically divided into two words. First of all, web, and second is development. You can see here the image also. So web is it refers to website, web page or anything that works over the internet. Basically it means जो भी हम कुछ भी डेवलपमेंट कर रहे हैं ऑन दी जो भी हमारा कुछ भी डेवलपमेंट है वेबसाइट हो और वेब पेजेस और एनीथिंग और वेब पोर्टल्स विच रिक्वायर्स इंटरनेट और जो भी इंटरनेट पे चलता है और ब्राउजर पे रन हो रहा है आर कॉल्ड वेब. एंड जो भी डेवलपमेंट क्या है बिल्डिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच. जो भी कुछ भी स्क्रैच से डेवलपमेंट हो रहा है जरूरी नहीं स्क्रैच हो. नाउ डेज वी आर यूजिंग ए फ्रेमवर्क विच आर ऑलरेडी रेडी मेड. So we don't need to develop application from scratch also. But development यही हो गया कि जो भी which we are building the application from scratch and what we are developing. It if it is a web development, it is a web development. But it requires internet, then it is a web development. So web and development, two different words which combine and make a web development. So nowadays we are using a websites on our browsers like Facebook, YouTube, which require internet. So web development ये हो गया. So next है अब web development में होता क्या है जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्या होगा कुछ भी हमें कोई भी डेवलप करना है सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए एक लेआउट रहता है कि हमें क्या किस लेआउट में हमें अपनी वेबसाइट का डिजाइनिंग चाहिए कि वो कौन कौन से पेज होंगे उसमें क्या क्या रन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर सेकंड होता है उसमें कोडिंग होगी कि कोड क्या रखना है कौन सी लैंग्वेज में वी विल यूज. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ development languages like PHP, Python, Java, .NET we will use for the development of web applications, web pages. So first second thing क्या है हमारे पास कोडिंग होनी चाहिए कि किस लैंग्वेज में हम इसको कोड करेंगे. फर्स्ट हो गया लेआउट कि हमें क्या क्या उसकी जो भी हमारा वेब डेवलपमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि सर्वर रिक्वायरमेंट क्या है कौन से सर्वर की चाहिए डाटाबेस कौन सा वी विल यूज. दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस वी विल डिस्कस लेटर. एंड कोई भी सर्वर है उसके साइज क्या होगा क्योंकि हमारा एप्लीकेशन जब भी डिप्लॉय होगा इन एनी एंड एनी सर्वर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी और टाइम टू टाइम कुछ सर्वर का साइज बढ़ता जाएगा. जब भी हमारे यूजर्स आएंगे उसका सर्वर का साइज बढ़ता है तो हमारे सर्वर का क्या रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो स्टार्ट
कोई भी डेवलपमेंट हो, इफ इट इज अ वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, फर्स्ट वी विल नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर सर्वर, कौन सी लैंग्वेज में डिप्लॉय करेंगे, कौन सा डीबी यूज करेंगे, ये हमें सब पहले हमें डिफाइन करना होता है। एक प्लानिंग बनाते हैं, लेआउट बनेगा कंप्लीट, देन वी विल गो टू नेक्स्ट स्टेप, इट इज ए कोडिंग, कि हम कोड स्टार्ट करेंगे। कोडिंग के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं, और फिर हमें किस, हर एक टीम बनेगी, कोई एक सिंगल पर्सन तो डेवलपमेंट कर नहीं रहा, तो टीम बनेगी, तो कौन सी टीम को किस डेवलपमेंट पे जाएगा, कि कोई, किसी को फ्रंट एंड दे दिया जाएगा, किसी को बैक एंड दे दिया जाएगा, किसी को एक पेज दे दिएगा डिफरेंट, सपोज एक साइड है, इसमें होम पेज है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट बेस है, तो सपोज क्या करता है, जल्दी बनाने के लिए हर एक पर्सन को टीम बैठी होती है, तो उसको एक पेज दे दिया जाएगा, वो एक डेवलपमेंट कर रहा होगा, एक सीएसएस का डेवलपमेंट कर रहा होगा। तो ये कोडिंग का पार्ट आ गया कि किसको हम डिफरेंट करेंगे। देन कंटेंट क्या होगा, कि हर एक पेज में कुछ कंटेंट आएगा, वो क्लाइंट देगा या हम खुद, क्रिएटर होगा, एक क्लाइंट, कंटेंट डेवलपर होते हैं जो राइटर होते हैं, वो कंटेंट देंगे, वो डिफाइन होगा कि किस पेज में कौन सा कंटेंट आता है, ठीक है। फिर आता है लास्ट, अब आता है ये, हमारी वेबसाइट डेवलप हो गई, अब आता है टेस्टिंग फेज में। कोई भी साइट डेवलपमेंट से लाइव पे जाने से पहले, प्रोडक्शन में जाने से पहले, बीच में एक आता है टेस्टिंग फेज, क्योंकि हम डायरेक्ट साइट को कोई भी लाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेस्टिंग फेज होगा, इसमें टेस्टर्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टूल्स फॉर यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस नाउडेज। सो हम टेस्टिंग यूज करते हैं, उसमें टेस्टर होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाए जाते हैं टेस्टिंग के लिए, कि कौन, हर टेस्टिंग केस के लिए हर साइट पास हो रही है नहीं हो रही। अगर साइट सारे टेस्टर की केस पे फाइनली सक्सेसफुल होती है, देन वी विल गो फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन मतलब लाइव पे जाती है साइट। कोड को तभी, आजकल हमने कोई भी साइट को दो, कोडिंग होती है उसके दो रिप्लिका बना के रखते हैं, एक डेवलपमेंट होता है, एक लाइव, ठीक है, जिसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं। जो भी हमारा कोडर होगा वो हमेशा डेवलपमेंट पे ही काम करता है, लाइव सर्वर पे जो भी हमारा कोड होता है उस पर काम नहीं करता, फर्स्ट डेवलपमेंट पे होगा, उसके बाद जो टेस्टर होगा डेवलपमेंट पे टेस्ट करेगा, देन इफ ऑल एवरीथिंग गोस फाइन, देन द कोड विल बी पुश फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन, मतलब लाइव पे प्रोडक्ट किया जाता है, जिससे कि कोई भी लाइव पे इशू ना है, ठीक है। लास्ट हो गया, फिर साइट लाइव हो गई। अब होता है एक, इसमें होता है एसईओ पर्पस। एसईओ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसका पार्ट क्या रहता है, ये डिफाइन करता है कि आपकी साइट कोई लाइव हो गई। हमने देखा होगा, कोई भी हम गूगल सर्च पे जाएंगे और हमने सर्च किया, सपोज फेसबुक किया, ठीक है, फेसबुक पे आपने बहुत सारे फेसबुक के रिलेटेड आपको लिंक्स आएंगे, तो सबसे टॉप पे कौन सा आएगा, facebook.com आएगा। आपको भी चाहिए, और आप नीचे, सबसे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो नीचे पेजिनेशन होंगे, आप फेसबुक के रिलेटेड और भी नेक्स्ट पेजिनेशन करके उसके रिलेटेड साइट्स आपको लिंक दिखाएगा गूगल। तो एसईओ क्या करता है, आपको चाहिए कि जब भी कोई गूगल पे सर्च करे, कोई भी सर्च इंजन में सर्च करे, तो आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो वेब पेज है, पोर्टल है, वो ऑन द टॉप पे आए, ठीक है, या फर्स्ट पेज पे आए। उसके लिए क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज किया जाता है। सर्च, इसमें क्या करते हैं हम, हर पेज के लिए आपके रिलेटेड कुछ भी जो भी कीज होंगी आपकी इस वेबसाइट, सपोज यूट्यूब है मान के चलो, तो यूट्यूब में क्या आप यूट्यूब बना रहे हो, रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, तो हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड कीज डालते हैं, उसके रिलेटेड कुछ भी यूट्यूब डालेगा या कोई भी यूट्यूब कंटेंट डालेगा, वीडियो साइट डालेगा, तो आपके रिलेटेड आपकी वेबसाइट ऑन द टॉप पे आए या फर्स्ट पेज पे आए, जिससे कि आपकी यूजर आपकी वेबसाइट ओपन कर सके, विजिट कर सके। उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, एसईओ का पार्ट होता है। तो ये सारा पार्ट, कोडिंग, टेस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टेप प्लानिंग, कि कौन सा सर्वर हमें यूज करना है, उसका साइज क्या रखना है, फिर कोडिंग पे जाएंगे, फिर प्रोग्रामिंग होगी, एक टीम बनेगी, फिर टेस्टर आएगा, टेस्टर होती है अलग डिपार्टमेंट जहाँ पे टेस्ट किया जाएगा आपकी वेबसाइट। एक कंटेंट राइटर होगा जो कंटेंट आपकी वेबसाइट, हर पेज में, वेब पेजेस के लिए कंटेंट राइट करेगा। उसके बाद लास्ट एसईओ, कि आपकी वेबसाइट एक तरीके से, एसईओ क्या, मार्केटिंग है, आपकी वेबसाइट की मार्केटिंग करना। ये सारा पार्ट किस में आता है, जो सबको कॉम्बो बना के मिलता है वेब डेवलपमेंट। ये वेबसाइट तो डेवलप हो रही, साथ में साथ उसकी मार्केटिंग, उसकी टेस्टिंग को सबको डेवलप करना का होता है वेब डेवलपमेंट। और सेम चीज हम ऐप डेवलपमेंट में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे दिया है, रेफर्स टू द बिल्डिंग, क्रिएटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट।
मेंटेनिंग ऑफ वेबसाइट मतलब कोई भी आपकी वेबसाइट आफ्टर लाइफ उसको कुछ चेंजेस चाहिए, उसको मेंटेनेंस चाहिए, कुछ सर्वर में आपको डिप्लॉय करना है या कुछ भी आपके अपडेट्स आ रहे हैं इन द वेबसाइट, तो उसमें क्या होता है मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट होता है। टाइम टू टाइम बैकअप रखना पड़ता है। आपकी साइट कोई भी यूजर है यूज कर रहा है, आपके लॉगिन हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है, उसका बैकअप रखना पड़ता है। समटाइम्स आपकी वेबसाइट क्या कहते हैं हैक हो गई या आपकी वेबसाइट में कुछ इशू आ गया, सर्वर बंद हो गया, तो आपका बैकअप होना चाहिए वेबसाइट का, जिससे कि आप उसको वापसी डिप्लॉय कर सको अनदर सर्वर पे। ठीक है, आप क्या मेंटेनेंस नहीं करोगे, वेबसाइट का बैकअप नहीं होगा, तो क्या होगा, कभी भी साइट वेबसाइट में कुछ भी इशू आया, आपका हैक हो गया या डिलीट हो गया कुछ भी डाटा, तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है, तो आप वेबसाइट चालू नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट बिल्डिंग हो गया, क्रिएट हो गया, after life we will do a maintenance of website. Every website requires a maintenance. ठीक है, आगे it includes aspects such as a web design, web publishing, web programming and database management. database required होता है, देखो कोई भी साइट है उसमें database की तो रिक्वायरमेंट आज की जरूरत है, प्रोफाइल है, कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए क्या चाहिए, डाटाबेस स्टोर दी ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स। तो डाटाबेस की रिक्वायरमेंट है। वेब डिजाइनिंग क्या होगी, आपकी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड जितना भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम वेब डिजाइनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, वेब प्रोग्रामिंग क्या होगी, जो भी आपकी बैकएंड की कोडिंग हुई, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आर यूज, पाइथन वी विल यूज, पीएचपी डॉट वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट, इट इज द क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट। तो वेबसाइट क्या है, द एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन द इंटरनेट। आपके पास इंटरनेट नहीं है तो वेबसाइट रन नहीं होती है। ठीक है, तो इस इट रिक्वायर्स इंटरनेट टू रन योर एप्लीकेशंस आर कॉल्ड वेबसाइट्स। ठीक है, द टर्म डेवलपमेंट इज यूजुअली रिजर्व फॉर द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस थिंग्स। दिस इज प्रोग्रामिंग। The basic tools involved are programming languages like HTML. HTML means hypertext markup languages. They are used for CSS, cascading style sheets, and JavaScript. Those these three languages are front-end languages. We will discuss about the front-end languages. Front-end language means जो आपकी उस languages को क्या कहते हैं, HTML, CSS, JavaScript. These three languages combine and create a front-end website, web pages. और another लैंग्वेज में बोला जाए तो स्टैटिक पेज, जो भी आपकी स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम इन तीन लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी आपको आपके ब्राउजर पे कुछ भी दिख रहा है फ्रंट एंड पे, वो सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू दिखता है। सीएसएस क्या करता है, कोई भी पेज की एक सुंदरता, जैसे ना सुंदर बनाने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। एचटीएमएल इज द बेसिक, आपका जो भी डिजाइनिंग हो रही है वो एचटीएमएल में हो रही है, कोडिंग हो रही है, और सीएसएस को थोड़ी सुंदर दिखाने के लिए, इसको कलरफुल दिखाने के लिए, एनिमेशन के लिए हम सीएसएस का और जावास का यूज करते हैं। और इन थ्री लैंग्वेज का यूज करके बेसिक आपकी वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। आपको कोई भी नहीं होती नहीं है, ना कि पीएचपी पाइथन। ये क्या है, आपको कोई भी डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं जब यूज करनी है, फ्रंट एंड के लिए, स्टैटिक पेजेस के लिए आप इन तीन लैंग्वेज का यूज करते थे पहले। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब आपको इस पे समझ में आएगा व्हाट आर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो इस इमेज में आप देखेंगे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पहले क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है। अब देखिए वेबसाइट, कोई भी आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, आप क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट की व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्लाइंट्स। क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चाहिए,
Hello, sir. Sir, sir, your voice is not audible. Sir, you're still not audible properly. ये होता है कि आपको पहले ऑल टाइम from the client